Hello friends, welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parmar. My dear students, Symbiosis Law Admission Test 2023 was conducted on 6th of May. In this session, I'm going to give detailed analysis of this examination with expected cutoff. My dear students, Symbiosis is one of the very important examinations. Symbiosis Pune comes in top 5 ranking of NIRF. It is also one of the very important institute जहाँ पे आप लोग बिल्कुल मेहनत करके आगे बढ़ना चाहेंगे. तो ये हम बात करने वाले हैं Symbiosis Law Admission Test 2023 जो 6th of May को कंडक्ट हुआ था. My dear students, इसका test number 2 is going to be on 14th of, you can say, same month, that is May. ओके सो बेसिकली आपके पास थोड़े और दिन है जहाँ पे आप अपना कोर्स करेक्शन कर सकते हो. कोई कारण से अगर आपने 6 मई का एग्जाम अच्छे से नहीं दे पाए, ठीक है, या आपको लगा कि यू वर कॉट अनगार्डेड, then possibly by watching this video you will be in a position to work on those important parameters. ठीक है, जहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए, जहाँ पे स्कोर इंप्रूवमेंट पे फोकस करना चाहिए. ठीक है, सबसे पहली बात, एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या रहा था, जैसे अनाउंस किया था बिल्कुल एग्जैक्टली 60 minutes 60 questions. क्या there were written ability test was there? No. VAT will be conducted separately for those students who are shortlisted for interview process. Otherwise, logical, legal, analytical, reading comprehension, general knowledge, total 5 sections were there. Out of 5 sections, each section had 12 questions. 12 is a 60 questions. That's an easy one which everyone knows. So what was the kind of difficulty level of each section? Okay. If I go by difficulty level, one of the easiest section was legal. However, the analytical reasoning turned out to be reasonably, you can say, moderate or difficult for the students who have not trained themselves for math. ठीक है, अगर आपने मैथ के लिए तैयारी नहीं करी, ठीक है, तो आपको पक्का ये दिक्कत आया होगा. अदरवाइज देयर इज नो मेजर ट्रबल. ओके, जीके was also manageable. There were static GK, there were current affair based questions. So overall, a good attempt of 54 plus out of 60 is really need of the hour. My dear students, अंडरस्टैंड वन थिंग. ठीक है, आपको ये 54 गुड अटेम्प्ट मतलब जेन्युइन अटेम्प्ट, नो नेगेटिव मार्किंग. तो आप 60 के 60 अटेम्प्ट करके आए होंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि क्या आपको आता था, क्या आपका फाइनल आंसर आया एग्जाम के दौरान. That's a very important point. But anyway, that's an easy one. I'm sure all of you are aware about this. So if I go by analytical reasoning, this section had questions on profit loss, percentage, clocks and calendar, speed, work and time. So ideally in 12 minutes one could have attempted 8 plus questions. That's possible. ठीक है, मैथ आता है. ठीक है, तो कुछ लोगों को लगा होगा कि अरे भैया मैथ तो नहीं आता है एनालिटिकल के अंदर. ठीक है, सिम्बासिस के एग्जामिनेशंस के अंदर तो मैथ तो नहीं होना चाहिए, पर मैथ आता है. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर योर 14th का एग्जाम, है ना. कंप्लीट ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू SICI, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, वर्क एंड टाइम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, रेशियो प्रोपोर्शन. ठीक है, ये सब आप तैयारी कर लीजिए. ठीक है, जनरल नॉलेज इज अ मिक्स ऑफ स्टैटिक एज वेल एज करंट अफेयर. देयर वर 7 क्वेश्चंस ऑन करंट अफेयर एंड 5 क्वेश्चंस वर ऑन स्टैटिक जीके. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट दिस, यू कैन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर, लेट्स से, रिलेटेड टू स्टैटिक जीके, दे वर basically books, है ना, the author name and everything kind of thing. So for example, let's say world's longest river cruise, Sultan Johan Cup is for which sport. ठीक है, who is the captain of Indian cricket team, company Alstom के बारे में कुछ सवाल था, ग्लास पैलेस के बारे में सवाल था. So primarily, ठीक है, 5 मिनट में 12 क्वेश्चन में से 6 से 7 क्वेश्चंस कर लिए. लाइफ इजी है ना, लाइफ इजी है. लीगल इज मिक्स ऑफ स्टैटिक जीके, आर्टिकल के क्वेश्चंस थे, साथ में प्रिंसिपल्स नहीं दिए गए थे और सीधे फैक्ट के सवाल थे. ठीक है, सो आइडियली इन 12 मिनट 10 प्लस अटेम्प्ट कुड हैव बीन वेरी पॉसिबल. असॉल्ट, थेफ्ट, अनड्यू, यू कैन से, इन्फ्लुएंस, नेग्लिजेंस, इनके ऊपर क्वेश्चंस आए थे. लॉजिकल रीजनिंग वाज रीजनेबली चैलेंजिंग, not very easy. Series based questions, statement assumption, courses of action, blood relationship, coding decoding. तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग एरिया रह गया था और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगने वाला था. ठीक है, मेरे हिसाब से 15 मिनट में 9 क्वेश्चन के आजू बाजू आपका अटेम्प्ट चाहिए था.
आरसी 3 पैसेज, easy passages, not very difficult, and obviously it's time consuming लगता है आरसी, पर यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछे थे ज्यादातर वोकेब वाले, सो दैट मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे सवाल आ गए थे. एक था रशिया यूक्रेन वॉर का सवाल, ठीक है, दूसरा था चैलेंजेस इन जियो पॉलिटिक्स, और तीसरा कुछ एक से पैराग्राफ था जहाँ पे जनरल वोकेबुलरी के ऊपर सवाल पूछे गए थे. ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं, ये पेपर ओवरऑल बहुत ईजी तो नहीं था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था, मॉडरेट लेवल पे था. इस पेपर के अंदर किसी के 54 के ऊपर अटेम्प्ट होंगे तो उस बंदे के लिए चांस होगा पुणे में जाने के लिए. दोस्तों ये समझिए कि ओवरऑल आपके लिए जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें आपका स्लेट का स्कोर होगा करीबन 50%, ठीक है, और फिर आपका वैट और पीआई का वेटेज होगा मिला के 50%, विच मीन्स इफ यू आर नॉट स्कोरिंग वेल इन योर स्लेट एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि भाई आपको एक से इंटरव्यू का कॉल आया है और आप आसानी से इसको क्लियर कर लोगे, तो भैया ऐसा पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है. ठीक है, एंड देयर बाय माई टेक ऑन दिस पर्टिकुलर फ्रंट इज दिस लॉजिकल रीजनिंग वॉज रिजनेबली चैलेंजिंग. आप नंबर से बात कर सकते हैं. ठीक है, ओवरऑल आरसी was also reasonably challenging because कम समय में काम करना पड़ता है. ठीक है, so that way. So what is the expected cutoff? Expected cutoff for SLS Pune for BA LLB course will be 51 plus. For BBA LLB course it is 48 plus. Okay, while Noida will be at par with Pune's BBA course. नोएडा का BA-LLB एट 48, नोएडा 45 प्लस फॉर BBA-LLB. ओके, सो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ ईजी नहीं है. ठीक है, SLS हैदराबाद विल बी एट 42 प्लस, नागपुर विल बी 35 प्लस. ठीक है, तो ये मेरी तरफ से टेक है. ठीक है, जो भी समझ में आया हमें पेपर के बारे में लोगों से बात करते हुए कि किस तरीके का और इतने सालों में किस तरीके का एक्सपोजर रहा इस एग्जाम के बारे में, तो वो जानकारी यहाँ पे आपके सामने अवेलेबल है. ठीक है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी ऑन दिस. अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप बिल्कुल पूछिए. ठीक है, कमेंट बॉक्स में डालिए. विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू ऑल योर क्वेरीज. ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.